Well, the scope of what AI can do is going to be pretty dramatic. In the future, we can go ahead and even make films without anybody. When an individual could make a full-length feature film. The tools are developing really fast. So there's going to be a lot of convergence of capability. Today, it's a little distributed amongst the tools. But in future, there will be a lot of convergence and it'll be more user-friendly and more responsive as well. Any message for independent filmmakers that are coming? No, I'm so happy that we have a platform for independent films. It gives an opportunity for them to showcase good cinema. So I'm glad that the event is happening. Thank you. It feels great. It feels absolutely great because it gives an opportunity for people in Delhi to see different kinds of films, different language films. Like one of my Bengali films will be screening on the 29th called Puratan, which we did. That was my last film a few years ago, not even few. I mean, it's a recent film, and I'm very happy I've done it. It's very age appropriate, and it's I think one of my best, if not the best, because there's so much freedom that comes with age, and you don't have to really look pretty, and your face is not so much. So you can act so much better with freedom. So I'm very happy about this. Ma'am, this festival is also celebrating you. That's Yes. And ma'am, anything on that? No, I'm very happy, of course. I'm very happy and appreciate and grateful that they're doing this for me. And yes. Ma'am, a celebration of heritage cinema. Yes, absolutely. मैम दिल्ली Thank की you. जनता को कोई संदेश पहली बार ऐसा फिल्म फेस्टिवल मैं संदेश वगैरह नहीं देती हूँ किसी को। अपनी तरफ से तो ये बोलना चाह रही हूँ कि दिल्ली अभी इट्स अ कैपिटल ऑफ इंडिया, तो सो काफी इंटरेस्ट है लोगों का, सो आई एम श्योर दे विल एंजॉय दिस। दिल्ली जो है, पहली बार तो दिल्ली नहीं आया हूँ मैं दिल्ली से हूँ, लेकिन दिल्ली में पहली बार हो रहा है। दिल्ली कल्चरल कैपिटल है भारत का और बहुत अच्छा लग रहा है। ये मैं कहूँगा कि बहुत ही ओवरड्यू फेस्टिवल है और बहुत अच्छा लग रहा है कि फाइनली दिल्ली को अपना फिल्म फेस्टिवल मिल रहा है। दिल्ली वाले मेरे ख्याल से आर वेरी कीन फिल्म गोअर्स ऑल्सो, उनको इंडियन और इंटरनेशनल सिनेमा देखने को मिलेगा, ऑल काइंड। सो इट फील्स वेरी गुड। आई थिंक द दिल्ली ऑडियंस, एनसीआर ऑडियंस डिजर्व्स इट। फिलहाल मैंने लिस्ट इतने ध्यान से देखी नहीं है, बट अ लॉट ऑफ द फिल्म्स आर आई थिंक रियली। We saw that film the first day, almost first show morning. तो यहाँ के लिए वेट नहीं कर पाए. I think that's a fantastic film and सबको देखनी चाहिए. मेरे ख्याल से the fact that it's here in this film festival, I think is going to be a big crowd puller. बहुत अच्छा. This is a wonderful initiative and this is the first the international film festival happening in Delhi, and we have been asked to participate. We are very glad, and this will help for the young talents. I think it's just not the films, because you get a chance to see good films everywhere nowadays. But I think this workshop and those classes will really help the new generation because there are a lot of talents throughout the country and they're doing fantastic work. And I think this kind of a festival gives us a lot of hope, and you get a chance to see not only international films, you also get a chance to see a lot of films happening in India. We get a chance to see mostly the language, which is Hindi, but there are a lot of good work happening in Punjab, in Marathi, in Gujarati. So you get a chance to see a lot of young talents doing a lot of good work nowadays. So I think this is a wonderful initiative, and I'm really happy to be part of it in the first film festival. Sir, any film that you are looking forward to watch here? I just came for a day and a half. Tomorrow they're showing one of my film, which was a national award film, long back with the first time director. But yeah, but I'll just go through the list, and if I get a chance, I will surely watch it. I think I'm very grateful to all the women who have paved the path for women in cinema, because it's not overnight to nahi hua. It's taken decades of female actors or female filmmakers, technicians and thinkers, writers who have actually created that path for more female actors and creators and women in cinema. So I think मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा important है कि हम उन्हें भी celebrate करें as much as we are celebrating contemporary women in cinema. And I'm really happy that the first edition of Delhi International Film Festival has this as a theme, along with celebrating everybody who is contributing to cinema. Ma'am, this film festival is having free entry for all. So how do you think this
benefit all the independent filmmakers? Absolutely. In fact, that's one of the first things that I saw, and मैं बहुत ही encourage करती हूँ और appreciate करती हूँ कि दिल्ली इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ने ये सोचा, क्योंकि I think फिल्म फेस्टिवल जितना ज़्यादा एक्सेस मासेस को, इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स को, और सबसे ज़्यादा फिल्में हम बनाते हैं ऑडियंस के लिए, तो उनके लिए अगर फ्री पास हो कि आप रजिस्ट्रेशन करके फिल्म देखने आ सकते हैं, दैट्स ग्रेट, बिकॉज द गेट कीपिंग इज वॉट कीप्स सिनेमा डिवाइडेड. क्योंकि कई बार ऑडियंस से मैं इंटरैक्ट करती हूँ, बात करती हूँ, तो उन्हें लगता है कि ये तो फेस्टिवल वाली फिल्म है, और इट्स लाइक अ लॉट ऑफ प्रोसेस, इट्स लॉन्ग प्रोसेस है या कुछ है. सो आई थिंक फ्री एंट्री से कम अगर कोई फिल्म बफ है या फिल्में देखना चाहता है, या हिंदुस्तान के बाहर की फिल्में या रीजनल फिल्में देखना चाहता है, उन्हें एक्सेस देने का ये बहुत ही अच्छा सोच है, और मैं इसे बिल्कुल इनकरेज और अप्रिशिएट करती हूँ. टाइम हो रहा है फिल्म फेस्टिवल जी, ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे, ऐसे फिल्म फेस्टिवल होना कितना जरूरी है? बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आई थिंक सिनेमा सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है, इट ऑल्सो रिफ्लेक्ट सोसाइटी. जो मेकर्स हैं उनकी सोच को रिफ्लेक्ट करते हैं, हमारे सोसाइटी में क्या हो रहा है उसे रिफ्लेक्ट करते हैं. इट हैज़ सॉफ्ट पावर. सो आई थिंक जितने ज़्यादा फिल्म फेस्टिवल्स हों उतने ज़्यादा ऑडियंस देखेंगे, उस पर चर्चा होगी, चाहे जैसी भी चर्चा हो. आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट एज अ सोसाइटी वी हैव कॉन्स्टेंट डायलॉग, एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी टू बी हियर. My heartiest congratulations to the Chief Minister of Delhi and the government of Delhi that they have created such a huge platform for filmmakers. Cinema today is gone international. Indian cinema is beyond all the boundary lines what we have. And it's nice to see that people world over are coming to India and looking at Indian films and saying that what more they can learn from us. So it's not a give and take policy, but I think it's a very, very friendly atmosphere where we learn from each other, and we all belong to the same fraternity of, I say that it's a same family rather, filmmaking. So it's great to see that how much we get to learn from each other, and it's a wonderful opportunity for all of us. Well, I have seen him closely, performing, and every time I watch that man on screen, it's always surprising. When I watched Dhurandhar, both the parts, I was still surprised with the process, the depth, the nuances, the aggression, and even though I know him so closely, it's always surprising, and that's the mark of a true actor, that you can surprise the people. Oh wow. How do you think this will benefit all the independent filmmakers or all the audiences that are coming here? I think शायद सिनेमा भी नहीं देखी है अभी तक जाते हुए. तो मुझे लगता है सिनेमा में देखनी चाहिए, और अगर आप ये फ्री में स्क्रीनिंग कर रही हैं तो मुझे बताइएगा, मैं भी आगे बैठ के देखूंगा. फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि दिल्ली में फिल्म फेस्टिवल हो रहा है, तो यूथ जनरेशन को क्या कहना चाहिए? बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, बहुत अच्छी चीज़ है जो हो रही है, और सबको मौका मिलना चाहिए, जो भी दिल्ली के आसपास के शहर हैं, जो दिल्ली में लोग रहते हैं, और इंडस्ट्री सिर्फ बॉम्बे नहीं पूरी इंडिया में एक्सपैंड होनी चाहिए धीरे धीरे. तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और ये शुरुआत है. I'm just very happy to see how Dhurandhar is working. I loved the first part. I'm yet to watch the second part. But Aditya is a great filmmaker. He got a great cast together, and I'm so happy कि सबका प्यार इतना मिल रहा है फिल्म को. And I can't wait to catch this. जैसे ही मैं बॉम्बे वापस जाऊँ तो मैं फिल्म देखूंगा. Thank you. Something on Love and War. Your film is about Love and War. हाँ जी, हाँ. Something you want to tell us about अभी तो फेस्टिवल की बात करते हैं, उसमें अभी भी वक्त है, हम बात करेंगे. कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है. आई थिंक अबाउट टाइम कि हमारे देश में दिल्ली जैसे शहर में एक इतना बड़ा फेस्टिवल हम आयोजित करें, ताकि हम जो पूरी दुनिया में जाते हैं फिल्म फेस्टिवल्स में, अब दुनिया हमारे पास आए फिल्म फेस्टिवल के लिए. सो ये बहुत अच्छी एक पहल है हमारी तरफ से. दिल्ली सरकार को मैं बहुत बधाई देना चाहूँगा. सॉरी, मैं एक्चुअली आई एम जस्ट कम फॉर टुडे फॉर द इनॉग्रल, एंड देन आई हैव टू गो बैक टू माय शूट शेड्यूल. बट आई हैव हर्ड कि यहाँ पे 125 से ज्यादा फिल्में हैं. सो आई रियली होप वो भी है. सो दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट. आई नो, मुझे पहले पता होता तो मैं बॉम्बे नहीं यही प्लान बनाता. दिल्ली के लोग को क्या कहना चाहेंगे जिनके लिए फर्स्ट टाइम दिल्ली में फिल्म फेस्टिवल? नहीं, मैं तो यही चाहूंगा कि सब आएं और इसका पूरा का पूरा जो है निचोड़ लें इसे, जितनी फिल्में देख सकें, जितने लोगों से मिल सकें, सिनेमा की बातें कर सकें. बहुत सारे मास्टर क्लासेस हैं, वर्कशॉप्स हैं. सो किसी भी इंसान को, यंगस्टर को अगर आर्ट में रुचि है तो वो बिल्कुल इसके इन 6-7 दिनों का बिल्कुल वो एक सदुपयोग कर सकता है, और जितना चाहे वो फिल्में देख सकता है और मास्टर क्लासेस में आ सकता है. And how is the Josh, sir? जोश इज ऑलवेज हाई सर. थैंक यू. We are also celebrating heritage cinema and AI here. So how do you think this blend will be
beneficial for कमाल की चीज है, हर चीज नई चीज बहुत कमाल की है, एंड आई थिंक किसी भी चीज का सेलिब्रेशन बहुत अच्छा है, एंड आई नो द बेस्ट टीम एंड बेस्ट पीपल आर कमिंग हियर फॉर द गाइडेंस एंड फॉर मास्टर क्लासेस लाइक आई सेड, सो कांग्रेचुलेशंस टू द एंटायर देखिए टीम। आज पहला इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल उसकी आज शुरुआत हुई है माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी द्वारा, हमारे मित्र और मंत्री कपिल मिश्रा जी द्वारा। ये एक बहुत बड़ा एवेन्यू दिल्ली की देश की राजधानी के लिए खुला है। अब तक तो हम दिल्ली को पिक्चरों में देखते थे, मूवीज में देखते थे, अब पिक्चरों वाले दिल्ली पहुंच रहे हैं, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। दिल्ली को आने वाले समय के अंदर किस तरह से इस ऑरेंज इकोनॉमी का हिस्सा बनाया जा सकता है, किस तरह से ये एक बहुत बड़ा जो कारोबार पूरी दुनिया में माना जाता है उसको दिल्ली से भी उसका जुड़ाव हो और दिल्ली में एक फिल्म इंडस्ट्री के तरीके से काम हो, इसी दृश्य के साथ, इसी सोच के साथ पहला इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल किया जा रहा है। मैं शुभकामनाएं देता हूं और मुझे यकीन है कि इससे एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा और ऑरेंज इकोनॉमी के अंदर दिल्ली का भी बहुत बड़ा बोलबाला होगा। बहुत ही भव्य, बहुत ही जो वैश्विक स्तरीय एक ऐसा प्लेटफॉर्म, ग्लोबल प्लेटफॉर्म जहां पे जो है सिनेमैटिक एक्सीलेंस को हमें जो है देखने को मिलेगा, ना कि सिर्फ देश से विदेश से, न जाने कितने 2000 से ज्यादा कंट्रीज ने जो है वो अपनी फिल्में जो सबमिट की हैं। आप देख रहे हैं 6 से 7 दिन का 31 मार्च तक जो ये भव्य आयोजन है फिल्मों का है, और भी उसके अलावा कई इवेंट हैं, मास्टर क्लासेस हैं, इंटरेक्शंस हैं। तो इस तरह से जो है जो कला को, संस्कृति को, जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की पहले से जो कमिटमेंट है, एक चाहे वो आप देखिए क्रिएटिव इकोनॉमी को लेकर या एक कल्चरल हेरिटेज जो हमारे देश की है उस पर एक ग्लोबल स्पॉटलाइट जो है हमेशा निरंतर रहनी चाहिए, जो प्रधानमंत्री जी का जो विजन है उसको आज साकार करते हुए दिल्ली सरकार और रेखा दीदी ने भी आपने देखा कि ये उनका ही एक, जैसे कपिल मिश्रा जी ने बोला कि उन्हीं का ही ये एक आइडिया था। तो हम एक कलाकार होने के नाते, फिल्म इंडस्ट्री से इतनी गहराई से जुड़े होने के, मैंने भी फिल्म इंडस्ट्री में 20 साल पूरे किए हैं, अपने जीवन का एक लंबा कालखंड जो है फिल्मों को दिया है। तो हमारे लिए तो निश्चय ही एक बहुत ही बड़ा एक आज उत्सव है, हम कह लीजिए। कई लोग देश के जो है रीजनल सिनेमा से लेकर आपने देखा कि हमारे जो वेटरन्स हैं, चाहे शर्मिला टैगोर जी हो गए या हेमा जी हो गए, धर्म जी को जो है वो लाइफ टाइम अचीवमेंट मिला, विकी कौशल जी आपने देखा कि अपनी परफॉर्मेंस वहां पे दे रहे थे। तो इस तरह के सब लोग जो है बड़े खुशी से इसमें हिस्सा ले रहे हैं। मैम, धुरंधर 2 जैसी फिल्म को फ्री स्क्रीनिंग मिल रही है इस फेस्टिवल में, कितना बेनिफिशियल है? देखिए ये प्लेटफॉर्म में आज ये प्लेटफॉर्म है ही ऐसी फिल्मों को जो कि भारत जो है एक भूखा नंगा एक जो है एक ऐसी जगह है, उस फिल्मों से अब उभर कर ये नए भारत की तस्वीर है। जितना ये लोगों ने गुमराह किया है, भारत की इमेज को खराब किया है, धुरंधर 2 जैसी आप फिल्में देखें, आप देशभक्ति की फिल्में देखें, नए भारत की तस्वीर देखें जिसमें संस्कार, देशभक्ति और जो आधुनिकता, विकसित भारत का सपना, उससे पल्सेटिंग एनर्जी जो एक नए भारत की जो है वो देखें। इसके लिए ऐसे प्लेटफॉर्म्स होने चाहिए। हम बहुत ही धन्यवादी हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के, जो ये विकसित भारत का सपना जिन्होंने हमें दिया है और उसको लेकर हम सब आगे चल रहे हैं।